Hello students, welcome you all. This is Dheeraj Kumar Gupta and I am going to teach you accounts partnership fundamental today. In last class we had discussed some basic points of partnership fundamental and today I will start some more topics, some more point. Okay. Now let us start today's class. This is first chapter accounting for partnership firm fundamentals. Okay. Students, I have told you something in last classes. In today, I will teach you further things, the new topics of these chapters. You are watching this video. I am teaching you by the book of D.K. Goel because it's a very easy to access this book. All of the students, wherever they are, they can arrange, they can find out the books of D.K. Goel. So it is the book of D.K. Goel and I have sent also PDF file on your WhatsApp number. Okay, so download it and read with me because in this lockdown period you are not in the position to purchase book. That's why I have arranged PDF file of new session of the new book for the 2020 and 21. So you can read this book with the PDF file with me. Okay, so now let's start. I have discussed you this chapter something. I have discussed introduction and nature of partnership firm and the definition of partnership firm. I have given notes also, and today I will tell you something more. Rights of the partner I have told you in the last class. So if you not watch my first class, then at first go and watch my first class and then after start this video. So partnership deed. Today I will tell you about partnership deed. So since partnership is the outcome of the agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions may be either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all the misunderstanding and disputes, it is always the best course of have a written agreement duly signed, registered under the act. Such the written document which contain the terms of agreement is called partnership deed. Students, last class में भी हमने आपको बताया था ये बात कि एग्रीमेंट बनाना, डीड बनाना कंपल्सरी नहीं किया गया है, बट ये अच्छा होता है फ्यूचर के लिए. फ्यूचर डिस्प्यूट से बचना हो तो आप क्या कर सकते हैं, डीड बना सकते हैं. नाउ सी फर्दर थिंग्स. सो the partnership deed should contain the following points. What? First, the name of the address of the firm, name address of the partners. These things I have discussed you in the last class. So go further for the next topic. This should be written in the deed, and I have discussed you in last classes. Okay, and you can read from this book also. So many points are there. Now importance of partnership deed through the law does not make mandatory. जैसा हमने आपसे बताया था, लॉ ने कंपल्सरी नहीं किया डीड बनाना. For every firm to have partnership deed, it is desirable have due to the following reasons. इनके पास रीजन होते हैं बनाने के. First, it regulates the right, duties and liabilities of the each partner. It helps to avoid the misunderstanding among the partners because all the items conditions of partnership have been laid down before in the deed. Okay, then after, any dispute among the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट में डीड बहुत काम आता है. जो डीड में लिखा होता है वही फैसला किया जाता है. अदरवाइज Partnership Act 1932 will apply. Okay, sir. Then go further. Rules applicable in the absence of partnership deed. If you have no partnership deed, then what will be the rule there? First, profit loss sharing. Profit sharing ratio तो इक्वल, हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, नो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन to the extent of only 6%, and admission of new partner without the consent of all existing partner. Be careful, without the consent of all existing partners no new partner can be admitted to the firm. It means अगर सपोज करिए आपके फर्म में 5 पार्टनर हैं, कोई 6
पार्टनर आना चाहता है तो पांचों पार्टनर की कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 4 पार्टनर कहते हैं कि ठीक है आप एडमिशन दे दो, पर एक पार्टनर कहता है नहीं, इसको एडमिशन फॉर्म में नहीं देना है, इसको पार्टनर नहीं बनाना है, तो नहीं बन सकता। ठीक है, कब? जब इस तरह से आपने डीड अगर नहीं बनाया है तो। सो ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, कैन टेक अ कॉपी ऑफ सेम, ले सकते हैं। These things I have discussed you. It's only backup for you. You can see in my first class also. So regarding a partnership transaction, from today I have to start this thing. That was the only backup for the first class. Now today I will start the recording of partnership transactions. पार्टनरशिप में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है आज डिस्कस हमें यहाँ करना है। आइए, सो ट्रांजेक्शंस आर देयर व्हाट you know profit and loss appropriation accounts is prepared. So we have to at first prepare profit and loss appropriation account. Okay, so how it will be prepared? Now listen, this is the format of profit loss appropriation account. What you know very well. You know, at first I want to tell you what is the appropriation. So I think all the students looking very seriously. Now listen to me. At first look at me. पहले आप समझिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम करा भी देंगे, आपको आ भी जाएगा। पहले समझना बहुत ज़रूरी है। लिसन टू केयरफुली। 11th में आप लोग 11th पास होकर 12th में आ चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। पहले तो आई कंग्रेचुलेट टू ऑल पर्सन्स, ऑल द स्टूडेंट्स who pass out class 11th and now attending my 12th class. So listen, तो 11th में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना, याद है ना? फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट, दो चैप्टर आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट पता किया था और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप लोगों ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला था। रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? ओके, तो आपको याद तो होगा ही। चलिए, तो अब देखिए एप्रोप्रिएशन वर्ड आता है, ठीक है ना? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है कि बंटवारा, यानी प्रॉफिट लॉस का बंटवारा करना, बांटना, एप्रोप्रिएट करना। दैट्स कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन अकर्ड वेयर द फर्म एंड पार्टनर इज देयर। देखो, थर्ड पार्टी यहाँ से जितने भी होते हैं इनकम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो तो प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग में जा चुका है। बट अब जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आती है, यानी कि सबसे ऊपर क्या बनता है? ट्रेडिंग बनता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को आप सीडी से बीडी करते हो और वहां से फिर क्या स्टार्ट करते हो? ध्यान सुनना, बी केयरफुल। ग्रॉस प्रॉफिट से बाद नीचे क्या आती है? प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस से क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। तो यूं समझ लो, इस नेट प्रॉफिट के बाद फिर इसके नीचे एक फिर ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, जो हम अगर मेरे प्रॉफिट टू साइड में आती है लिखते हैं ना टू नेट प्रॉफिट, तो उसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं नीचे, उसी के नीचे, जैसे कि ट्रेडिंग से पीएल में आए थे उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट क्या करेंगे अब हम पीएल से फिर नीचे आ जाएंगे, लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तीसरा पार्ट। अब तक 11 में आपने सिर्फ 2 पार्ट पढ़ा था, तो इसका तीसरा पार्ट भी होता है, उसके ठीक नीचे बनता है एप्रोप्रिएशन। तो इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं, उसके नीचे नहीं बनाते, हम लोग अलग से बना लेते हैं, उसका पार्ट है। तो इसमें क्या होगा? पार्टनर और फर्म के बीच में जो जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किए जाएंगे। What I have said, any transaction between partners and firm will be recorded in the profit loss appropriation account, not in profit loss account, not in trading account. Okay, ट्रेडिंग पीएल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब सर ये बताइए कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में होते हैं? बेटे याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और कुछ रिजर्व में अगर ट्रांसफर करना है तो ये सब क्या होगा? ये पार्टनर्स और फर्म के बीच के ट्रांजेक्शन होते हैं। दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देन आफ्टर कुछ प्रॉफिट जो बच जाते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, एप्रोप्रिएट कर दिए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड पार्टनर्स में, पार्टनरशिप में इसको बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया होगा? अब आइए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए हमारी बात को। अब यहाँ से आप देखिए, सो नाउ बी रेडी and be serious. This is the format of profit loss appropriation account. So particular amount, at first you have to write down here by, look here, by
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बेटा ये कहाँ से आया होगा प्रॉफिट लॉस? अभी हमने बताया आपको ना, ऊपर आप इसके ठीक ऊपर आपने ट्रेडिंग बनाया होगा, प्रॉफिट लॉस बनाया होगा, और टू साइड में यहाँ कहीं आया होगा टू नेट प्रॉफिट सीडी आया होगा ना। तो यही जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वही प्रॉफिट यहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम वेयर, हमने लिया इसको यहाँ से, इसको लिया हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस आया हमारा, तो उसको लिख दिया हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आती है? अच्छा सर, उसके बाद ये लिखा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, लिखा भी है पीएल अकाउंट, मतलब ये पीएल अकाउंट से ऊपर से नीचे आया है। जिस तरह से ट्रेडिंग से हम नीचे ले आते थे पीएल में, उस तरह से हम प्रॉफिट से नीचे ले आते हैं, ट्रांसफर कर लिया हमने। अब आइए प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, अब इसी प्रॉफिट का हमें बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएट करना है। तो सबसे पहले अगर इफ एनी सैलरी इज गिवन टू द पार्टनर्स देन एट फर्स्ट चार्ज, not charge, I will discuss you charge and appropriate, there is difference. So here I will say to salary to partner, whatever is salary you are given in the partners, so just write down to salary to the partner, debit करिए, and then after to commission to partner, any commission is given to the partner, so transfer here, and then after interest on partners capital, you know बेटा partners capital पर interest 2 में क्यों आया? अभी आप सोचिए कि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पार्टनर्स ने फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया है, सपोज करिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों ने क्या किया है, एक ने लगाया है 6 लाख रुपए, एक ने लगाया है 4 लाख रुपए, 6 लाख एंड 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट बाय बोथ द पार्टनर ए एंड बी इन द फॉर्म, ओके, देन दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ओके। तो उनके कैपिटल लगाए, कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला होता है। अब ये आप बताइए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? और उससे पहले हमको ये बताइए ये जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन हम लोग बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं? फर्म के लिए बना रहे हैं या पार्टनर के लिए बना रहे हैं? बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं किसके लिए हम बना रहे हैं। अच्छा आपकी सोच बदल जाएगी, तुरंत कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तो बी केयरफुल, ये चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले सुनिए आप लोग, ये जो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म के लिए बना रहे हैं, और फर्म के अंदर कैसे सारे पार्टनर है, तो ये दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर फर्म, तो फर्म के लिए प्रॉफिट बना रहे हैं प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि जब हम फर्म के लिए बना रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा रहा है कि उसको उससे लिया जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल फर्म में लगाया है तो फर्म क्या कर रहा है, उसको उस कैपिटल बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। इसका मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर्स की तो इनकम होगी, उसका फायदा हुआ। बट हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी, ट्रांसेंडेंट का पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो फर्म तो इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर्स को। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर, this is the transaction between the firm and the partner, interest paid by firm to the partner, okay, so if interest paid by the firm to the partner, so it is the expenses or you can say loss of the firm, ठीक है ना, that's why it will be debited in the partners profit loss appropriation account, understood। ये फर्म के लिए लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फर्म का बना रहे हैं और उसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं गोल्डन रूल 11 में पढ़ा था आपने ना, एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, उसको पे करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी टू कमीशन व्हाटसोएवर टू कैपिटल ऑल आर payment made by the firm to the partner, it is the expenses of the firm that should be debited in the profit loss appropriation account. Then after, if any reserve, if you want transfer any profit to reserve, then transfer from here. And if partners had made any drawings, अगर partners ने drawing कर रखा है, drawings means what? Personal expenses, okay. So if partner withdraws some amount from the firm for personal use, it means for this amount, for this withdrawal amount, they have to pay some interest to the firm, just opposite of the interest on capital. उसने कैपिटल लगाया था तो फर्म में इंटरेस्ट दिया पार्टनर को, अब पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए घर ले जा रहा है पैसा निकाल कर, तो ये पैसा फर्म में आप दे चुके थे काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो पैसा आप वहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। जो पैसा आप निकाल रहे हैं तो इस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जब आपने पैसा फर्म में लगाया था तो फर्म ने आपको इंटरेस्ट दिया, अब आप फर्म से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड on the drawings of the partner and interest on drawing is the income of the firm because it's a receiving, partner से फर्म को मिल रहा है, तो एंट्री पास करने पे बना रहे अकाउंट हम लोग फर्म के लिए, then it should be credited in the profit loss appropriation account. Now I think आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने डेबिट क्यों किया
और क्रेडिट क्यों किया, इसको रटना नहीं है आपको, डोंट बी ट्राई टू रिमेंबर इट, आप इसको रटने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा, समझिए हमारे साथ साथ, बेसिक से स्टार्ट से, स्टार्टिंग से सब कुछ समझते जाएंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जिसके पास ये बुक नहीं है, न्यू बुक नहीं मिल पाया है, वो बुक आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको उसी नंबर पर ये बुक की कॉपी सेंड कर, पीडीएफ फाइल हम सेंड कर देंगे आपको, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन द लॉकडाउन पीरियड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बुक्स अगर नहीं परचेज कर पा रहे हैं आप, नहीं मिल पा रहा है आपको, तो बुक्स की ये न्यू बुक है, न्यू सेशन की 2020-21 की नई बुक है, हमने इसमें क्या डाल दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इफ यू स्टार्टेड योर लर्निंग, योर स्टडी, देन यू विल बी find more thing and more benefit, otherwise you will get loss. Now further, now I will do what, balancing. It means whatever you have debited and whatever you have credited, and then after now start do the balancing, means जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, आपने क्रेडिट किया, आपने डेबिट किया, आप क्रेडिट को जोड़िए, इस साइड को जोड़िए, क्रेडिट साइड को, इस साइड को भी जोड़िए, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इधर डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर पार्टनर्स, क्योंकि फर्म की प्रॉफिट है, कौन लेगा, पार्टनर्स लेंगे, दैट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके, आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कब लिखते हैं, आई हैव डिस्कस यू इन माय फर्स्ट क्लास, so again I am repeating you, if you not see my first class then go at first see my first class and then after come to see second class, okay. So listen, so just I am repeating, if there is fixed capital then profit transfer to the current account, if there is fluctuating capital maintenance then it should be transferred, the profit transfer to the कैपिटल अकाउंट, इट मींस फ्लक्चुएटिंग अगर सिस्टम चल रहा होगा तो कैपिटल में जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे होंगे तो इन दिस सिचुएशन करेंट अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले इधर जोड़िए एंड इधर प्लस कीजिए और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप यहाँ इस कॉलम में लिखिए और इस डिफरेंस को आप इनके ए और बी में बांट दीजिए, लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, जो चाहे इक्वल या जो उनका रेशियो, उनके रेशियो में इनको आप यहाँ बांट दीजिए, दैट इज द प्रिपेयर्ड, ये आपका काम हो गया। अब now I will talk about the journal entries, what will be entry passed, okay, listen. So you know what about the entry the journal entry are passed for the various items so in the above profit loss accounts, appropriation accounts as follow. First, जितने आइटम हमने उसको पास किया है, अब एंट्री पोस्टिंग किया था, सबकी जनरल एंट्री करनी है, ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था उसकी एंट्री है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। बच्चों वन थिंग मोर, क्या आपको लग रहा है सर क्या ये सब एंट्रियां आपको याद करनी पड़ेंगी, इससे केस वाइज, इस केस में ये एंट्री होती है, अगले केस में ये एंट्री होती है, तो क्या कुछ बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं, दे ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी, सर शुड आई रिमेंबर इट, क्या सर हमें सब एंट्रियों को रटना होगा, याद करना होगा? नो बेटा, नेवर। पूरे सिलेबस में अकाउंट का सारा सिलेबस, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सिलेबस, ऑल द चैप्टर्स। मैं आपको कभी भी कोई एंट्री याद नहीं करने कराऊंगा, कभी भी एंट्री याद करने के लिए कहूंगा भी नहीं, बिकॉज दिस इज द अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स शुड नॉट बी रिमेंबर, दैट शुड बी अंडरस्टैंड, आपको इसको समझना है, आप समझिए एंड नाउ ट्राई टू क्रिएट एंट्री। आप एंट्री बनाना सीख जाइए ना, तो याद करनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा सर तो बनाए कैसे, इसका कोई टिप्स है, कोई ट्रिक्स है? हाँ बेटा बिल्कुल है, इसका टिप्स भी है, इसका ट्रिक्स भी है, अगर आप सुनिए, ध्यान दीजिए, आपको हम सिखा दें, 11 भी सिखाया था हमने आपको, अगर आप भूल गए हो तो आप फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप फिर सीख लीजिए मेरे साथ, आप लिसन। सो यू नो फर्स्ट थिंग, वन थिंग, जैसे जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं बेटा, उसी तरीके से हम लेजर से जर्नल भी बना सकते हैं, एंड वेरी शॉर्टकट रूल्स इज देयर। ओके नाउ लिसन, अगर आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने आ गया है यहाँ पर, तो हम इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही क्या कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। और नॉट ओनली हियर, नॉट ओनली इन दिस अकाउंट, एनी अकाउंट, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अकाउंट आपको दिख जाए तो उस अकाउंट में से हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं बड़े आराम से, भले हमको याद हो चाहे याद ना हो, और याद तो करना ही नहीं, बिल्कुल आपको समझना है, तो आप समझिए एंट्री बनती कैसे है, देखो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए सर, जर्नल से तो हम लोग 11th में लेजर पोस्टिंग किया करते थे, रूल फॉलो किया करते थे पोस्टिंग का, जर्नल से लेजर बनाते थे हम लोग,
लेकिन लेजर से जनरल तो हम लोग बनाए नहीं थे, तो बेटा आज सीख लो ना, नहीं सीखे तो आज सीख लो। लेजर से जनरल कैसे बनता है, शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। सिस्टम भी होता है, क्योंकि सिस्टम तो बदलता नहीं है। यू नो वन थिंग, इन योर हाउस सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, पावर पॉइंट, यू नो पावर। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जब पावर स्विच देखते हैं तो पावर स्विच कोई हमेशा आइटम में सिर्फ एक होता है। जो आप चाहे किसी भी आइटम में देख लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देखिए, देखिए जहां से आप ऑन करते हैं वहीं से उसको आप ऑफ करते हैं। ऑन और ऑफ का बटन अलग अलग नहीं होता। कभी ध्यान दिया आपने इस चीज को? ऑन जैसा ऐसा नहीं कि अगर अगर किसी हमको एक लाइट भी स्विच ऑन करना है तो जिस स्विच से हम ऑन करेंगे वही स्विच क्या होता है, ऑफ भी कराता है। आप लोग रिमोट यूज करते हैं, ठीक है, टीवी का रिमोट यूज करते हैं, एसी का रिमोट यूज करते हैं, तो आप उसमें ध्यान दिए होंगे, कभी गौर किया आपने कि जो आपका रेड बटन होता है उसी से ऑन होता है और उसी से वो ऑफ भी होता है। इसका मतलब ऑन और ऑफ का बटन एक ही होता है। जिस जिस रास्ते से हम ऑन करते हैं वैसे हम ऑफ भी करते हैं, उसके दो रास्ते नहीं होते। उसी प्रकार बेटा जैसे जनरल से हम लेजर जाते हैं वैसे लेजर से हम जनरल भी बना सकते हैं। एक अकाउंट बहुत इजी है, डेबिट का बहुत अच्छा है, सो खेलिए इसके साथ। आप आइए सिखाएं आपको कैसे। देखो एक चीज खाली आप याद रख लो मेरे साथ, क्या क्या हम बोले जा रहे हैं, एक चीज याद रख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप लिखिए टू मिस टू और बाई मिस डेबिट। अरे ये क्या बता रहे हैं सर आप, टू मिस टू बाई मिस डेबिट? हाँ बेटा यही तो बता रहे हैं, ये तो समझने वाली चीज है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। शॉर्टकट्स है हमारा ये, क्या टू मिस टू बाई मिस डेबिट, ये आप समझ लीजिए। पोस्टिंग का ये वापस जाना है आपको, ध्यान रखिए क्या बोले हम, टू मिस टू बाई मिस डेबिट। इसका मतलब जो टू में है वो टू में ही रहेगा और जो बाई है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जैसे पकड़ते हैं, ये लिखा गया यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम एंट्री पास करनी हो सैलरी की तो लिखा है सैलरी टू सैलरी ऑफ पार्टनर। अब हमको टू सैलरी एंट्री पास करनी है, जनरल की ओर जाना है हमको, कैसे करेंगे, हम बोलेंगे टू मिस टू, जो टू में है वो टू में ही रहेगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर एंट्री, अब आप करेंगे क्या लिखेंगे आप, टू सैलरी। बात समझ में आ रही है? नाउ लुक हियर, नाउ लिसन, हमने कहा अगर हमें एंट्री पास करनी है सैलरी की, यहाँ लिखा है टू सैलरी, ठीक है। हमने कहा टू मीन्स टू, जो टू में लिखा है उसको टू में लिख दो, तो चुपचाप यहाँ लिख दो टू सैलरी, ठीक है ना। टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स आपने यहाँ लिख दीजिए, टू सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब देखिए सर हमने यहाँ तो लिख दिया टू सैलरी ऑफ पार्टनर, अच्छा अब जो टू में था टू लिख दिया, डेबिट क्या होगा इधर, नहीं ध्यान दीजिए, आप जिस अकाउंट से बना रहे हैं, ध्यान रखो, आप जिस अकाउंट पे आप वापस जा रहे हैं तो वो अकाउंट भी तो ऊपर लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, एंट्री में पास करेंगे तो जो टू में है वो टू में जाएगा, टू मीन्स टू, और डेबिट क्या होगा, इसका मतलब ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख दी, एंट्री पास कर लीजिए आप, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डेबिट कर लीजिए। एंट्री क्या बन गई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अच्छा एक बार फिर समझिए इसको ध्यान से, घबराइए बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है, एक बार समझ जाएंगे पूरे अकाउंट्स में काम आएगा आपको, पूरे साल भर आपको ये काम आने वाला है, जैसा टेस्ट में सिखा रहे हैं हम आपको। नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, इट विल बी अप्लाई फॉर द होल सिलेबस एंड होल चैप्टर। व्हाट, लिसन वेरी केयरफुली। देखो अकाउंट बेटा दो ही चीज में होता है, क्या, एक होता है डेबिट, यहाँ एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अकाउंट में हमारे सामने दो ही ऑप्शन है बेटा, चार ऑप्शन कहाँ है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। आप जानते हैं इस चीज को, समझते हैं अच्छे से को, तो एक हम मालूम चल जाए दूसरा तो मालूम चल ही सकता है ना आराम से। जैसे मान लेते हैं, देखो बेटा अगर मानते हैं हमारे सामने दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है, दो पर्सन हमारे सामने यहाँ पर हैं, ठीक है। और हमसे ये बताया जाता है कि इन दोनों में से, ध्यान देना, इन दोनों में से क्या है, एक जो क्या है पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और एक जो है इसमें से पढ़ने में बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन लगता है नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो एक पढ़ने में बहुत तेज है और एक पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कमजोर है पढ़ने में। अच्छा इन दोनों में से अगर हमें कोई बता दे कि इसमें से सर देखिए जो ए वाला है ना ये पढ़ने में बहुत तेज है, बस एक बताए, एक का बता दे, सिर्फ एक का हमको बता दिया जाए कि सर ए पढ़ने में तेज है और बी के बारे में कुछ ना बताया जाए, तो क्या बताओ, क्या बी को बताना जरूरी है कि ये कमजोर है? जब हाँ, जब दोनों नहीं मालूम रहेगा तो कंफ्यूज रहोगे, इसमें से कौन तेज है कौन पढ़ने में तेज नहीं है, कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जब दोनों में से एक भी अगर हमको मालूम चल गया तो कंफर्म 100% दूसरा वही होगा जो बचा है,
क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आती है, क्लियर है ना? इसका मतलब अगर एक हमको मालूम चल गया कि ये पढ़ने में तेज है, इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे, बिना बताए समझेंगे हम कि इसका मतलब वो बी, इसका मतलब वीक है। या हमसे कोई ये कह दे बी पढ़ने में थोड़ा वीक है, इसका मतलब क्या होगा, तुरंत हम समझ जाएंगे बी पढ़ने वीक है, बी के बारे में ही बताया गया, चुप हो जाए तो तुम तुरंत समझ जाओगे ओहो अगर बी पढ़ने में कमजोर है इसका मतलब कि ए तेज होगा। तो ये कॉमन सी बात है ना। तो यही यहाँ पे इतनी कॉमन सी चीज है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट में से एंट्री पास करते वक्त हमें डेबिट चाहिए और हमें क्रेडिट चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी हमको अगर मिल जाए तो दूसरा अपने आप मालूम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसको वहां फिट कर देंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो हमने तुमको सिखाया, तुमको अब देखो उसका फायदा, अब देखो जिसका 2:2 सिखाया हमने, अब आपको मालूम चल गया कि प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एंट्री पास करनी है। इनमें से ये एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ठीक है। 2 सैलरी यहाँ है और यहाँ प्रॉफिट लॉस है, एक डेबिट होना है और एक आपको इसमें क्या होना है, एक क्रेडिट होना है। सो क्या होगा, तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू 2:2, जो 2 में उसको 2 में चुपचाप लिख दो, तो लिखो 2 सैलरी। अब पार्टनर, अब तुमको पता है सर डेबिट के 2 चाहिए, एक क्रेडिट का तुम्हें मिल गया, 2:2 तुमने लिख दिया। जब 2:2 तुमने लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, अब जो भी तुम एंट्री करोगे वो डेबिट में ही जाएगा, इसका मतलब, क्योंकि एक ही बचा है तुम्हारे सामने, तुमने क्रेडिट भर लिया है, डेबिट का पोर्शन खाली है। ये जब कंफर्म हो गया, इस सैलरी क्रेडिट हो गया, इसका मतलब जो भी पीएल कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाएगा। क्या पास हो गई, पीएल डेबिट टू सैलरी। दूसरा चेक करो, लिखा है 2 कमीशन, हमने क्या बताया 2:2, तो क्या एंट्री पास करोगे, तुम लिखोगे ना 2 कमीशन, तुम क्या करोगे 2 कमीशन, और डेबिट क्या होगा, एक मालूम चल गया, क्रेडिट भर चुका है हमारा, डेबिट सिर्फ भरना है, फिल जस्ट लाइक क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक मालूम चल गया कि 2 कमीशन, एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 कमीशन। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ लिखा है 2 इंटरेस्ट, 2:2, 2 लिखो 2 इंटरेस्ट, डेबिट क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। हम ऐसे ही तुम्हें शॉर्टकट पर समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यही नहीं तुमको पूरे अकाउंट्स में काम आने वाला है, हर चैप्टर में काम आने वाला है, और बहुत शॉर्टकट तरीके से तुम काम करोगे। और हाँ, हम तुमको इसमें ये सोचकर सीरियसली सारी चीजें बता रहे हैं, इतनी चीजें बता रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आए। तो हमारा आज से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो टारगेट है वो बोर्ड एग्जामिनेशन का है। तो आप भी सीरियस हो जाइए, जो पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली करिए और टारगेट बोर्ड एग्जाम का ही रखिए, ठीक है। उसी को बेस रख के हम तैयारी करा रहे हैं, आपकी पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। तो बी सीरियस। तीसरी बात किया जाए इसमें, अगर रिजर्व की तो क्या होगी, 2:2 चला जाएगा, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्रांसफर हुआ था ए बी में, 20 हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जो 2 में वो 2 में रहेगा, वो चला गया। सर एक आइटम इधर से ही बता दीजिए, आओ बेटा आओ देख लो, इधर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम परेशान होते हो, देखो इधर लिखा है बाई, हमने क्या बताया था, बाई मिस डेबिट बताया था हमने, बाई मिस डेबिट। तो जब बाई मिस डेबिट होता है इसका क्या मतलब हुआ, लिखा है बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जब लिखा है बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब होगा, इससे आप क्या करेंगे, आप बाई मिस डेबिट, इसका मतलब एंट्री क्या पास कर लेंगे, आप एंट्री पास कर लेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे आप बताइए फटाफट। एक चीज तो आपको मालूम चल ही गया है, जो भाई डेबिट और क्रेडिट 2 ही ऑप्शन है, एक आपने फिल कर लिया है, बचा दूसरा किस अकाउंट से आया, ये जिस अकाउंट से आएगा अगला पोर्शन वही अकाउंट का होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 सही लिखा था, अगला पोर्शन यहाँ से आया था, वैसे यहाँ भी हमने बाय मिस डेबिट कर लिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। सो टेल मी क्रेडिट क्या होगा, सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग तो समझ चुके हैं इस चीज को। क्या देखिए, अगर बाई मिस आपने बताया है कि बाई मिस डेबिट होता है, तो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, बाई लिखते तो नहीं है सर, डेबिट कर लिया, तो जो बचा उसका क्या होगा, अगला पोर्शन जो होगा फिर क्या होगा, जिस अकाउंट से एंट्री आई है, किससे आई है, प्रॉफिट लॉस से आई है, एंट्री पास कर लीजिए। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ठीक है ना, इसकी एंट्री आपके पास हो गई, वाली अमाउंट जो होगा यहाँ पर यहाँ भर देंगे आप। इसका मतलब क्या एंट्री पास हुई, ध्यान दीजिएगा अगर बस आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ यही आप याद रखना है आप लोगों को, क्या लिख लीजिए मेरे साथ, इसको कोड बना के कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, 2 मीन्स 2 और आप लिखिए बाई मीन्स डेबिट, ठीक है ना। अब आपको ये 2 बातें खाली बस ध्यान रखी है, इसको हमने लिख भी दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, जस्ट राइट डाउन इट, 2 means 2 and by means debit, it will help you to pass journal entry with the ledger, ठीक है ना, from ledger so अगर 2 फिर रिपीट कर दें, जो 2 में आप एंट्री होती है तो आप समझ लिए हैं 2 में क्या करना होगा, 2 means 2 तो 2 सैलरी, और कहाँ होगा, जिस अकाउंट से आ रहा है
तो क्या होगा, अगला पोर्शन इसका हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर इसकी जगह की बात करते हैं, बाई लिखा हुआ है, बाई मींस डेबिट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, तो जिस अकाउंट से आया है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब एक मालूम चल गया, दूसरा फिल कर दो, जो खाली जगह बची उसमें फिल कर दो। यहाँ 2:2 लिखे थे, खाली जगह बची थी जिस अकाउंट से वो फिल कर दिया। यहाँ बाई में डेबिट किए, जो खाली जगह बची क्रेडिट वाला उसको यहाँ से फिल कर दिया। ठीक है ना, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। इस तरह से आपने समझ लिया। अब जरा आइए वापस फिर चलते हैं। देखो यहाँ मिला बेटा, देखो पहले क्या पास किया है, प्रॉफिट लॉस की, तो किया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री फॉर द नेट प्रॉफिट अकाउंट क्या पास किया इन्होंने किया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हमने एंट्री पास किया था ऊपर, ये एंट्री हमने पास किया था, सॉरी, देखो हमने एंट्री क्या पास किया था, प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो बुक वाले ने क्या किया है, उसने ये काम किया है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अकाउंट समझ में आ चुका है कैसे बनता है, तो आप क्या करते हैं, एंट्री भी पास कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट पॉइंट। नाउ सेकंड एंट्री, नाउ लिसन वेरी फास्ट। सेकंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड देन आफ्टर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। तो दो एंट्री होती है, पर इंटरेस्ट जब हम लोग चार्ज करते हैं उसकी एंट्री, और फिर पीएल अप्रो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां इसकी एंट्री पास करेंगे, उसको वहां भी सिखा देंगे हम आपको कि कैसे एंट्री आई। तो इस एंट्री को इंटरेस्ट चार्ज जब किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट इज द expenses of the firm that should be debited to interest on capital account debit to partners capital, क्योंकि partners capital account में ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा। एंड देन आफ्टर इसको इस एंट्री क्या करना होगा, हमको ट्रांसफर करना होगा। तो प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर जब करेंगे वो एंट्री देखो आ गई, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वहां लिखा था ना मैं 2:2, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैप, इंटरेस्ट लिखा था हम लोगों ने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2:2 हो गया, डेबिट यहाँ से लाया। यानी कि हर एक आइटम की से एक बार ध्यान सुन लीजिए, अभी तो हमने एक चीज आपको पीएल अप्रो से रिगार्डिंग एंट्री हमने सिखाया था, तो हर क्या होगा डांस में क्या होगा, एक तो चार्ज की एंट्री होगी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्लोजिंग एंट्री होती है, इसको ट्रांसफरिंग एंट्री होती है, ट्रांसफर किया जाता है, वो हमने सिखा दिया आपको, तो ये भी देखते जाइए। पहले चार्ज करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, यानी हर एक आइटम के लिए डबल एंट्री पास करना पड़ता है। तो देखो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें अगर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या कहता है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, एंट्री पास हो गई आपकी। ऐसी एंट्री जब ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं, एंट्री याद नहीं करना है। अभी एप्रो बताया, अभी हम अगली क्लासेस में हम आपको इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, आई विल डिस्कस अबाउट दैट, एंड दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंट्री। इस एंट्री के बारे में दिक्कत हो रही होगी वो भी मस्त समझ जाएंगे कैपिटल एंट्री कहाँ से आ रही है। तो अभी हमने क्या खोला था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया हमने आपको, अभी उसकी एंट्री आपको आ गई। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने नहीं सिखाया आपको, ठीक है ना, तो ये एंट्री कैपिटल से आ रही है तो वहां भी सिखा देंगे तो वो भी आ जाएगा। अभी आप एक दो क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप ऐसे 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 एंट्री करेंगे, आप फटाफट एंट्री पास करेंगे आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एंट्री फॉर कमीशन, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन एंट्री होती है। अगर सैलरी दिया होगा तो पार्टनर्स कमीशन, सैलरी या कमीशन जो भी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री आई, और इसको जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री आएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, ये सेम एंट्री यहाँ हो जाती है। उसके बाद अगर कोई रिजर्व ट्रांसफर करना होता है तो रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए कमीशन ड्राइंग, नेक्स्ट रिजर्व के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, जस्ट वी हैव डिस्कस। एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इफ बैलेंस प्रॉफिट आती है तो क्या बांटेंगे आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट, अब डिस्कस किया हमने 2:2। चलिए तो एंट्री है, इतने एंट्री आपने पास किया। अब इसके बारे में बात होता है अकाउंट्स भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी तो बेसिक्स कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, चीजों को हम बता रहे हैं क्या होता है,
क्योंकि अभी आप लोगों को ये नहीं पता होगा नाम कि क्या क्या आइटम, क्या वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो ये डिस्कस कर रहे हैं हम। जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो यही आपको हेल्प करेगा और एक एक चीज अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। अब एक बात करते हैं फीचर्स और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फीचर्स हम डिस्कस कर लिया है, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस होगा, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट क्लास, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों के डिफरेंस आज तो हमने आपको बता ही दिया है, कैसे पीएल बनता था, उसके नीचे अप्रूव करते हैं, इसमें क्या उसमें क्या जाता है। तो टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो। तो टुमारो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और चार्ज ऑफ प्रॉफिट, चार्ज इन एप्रोप्रिएशन, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बी केयरफुल एंड stay in your home and take the benefit of lockdown. Don't waste your period, this period, because at that time if you will use this period, it will be very very fruitful and very very beneficial for you. So सारी क्लासेस हम इसलिए बना रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको फायदा मिलने वाला है, नॉट फॉर दिस टाइम ओनली, इट्स इज फॉर forever and for your board examination also. So be safe and stay your home एंड खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।